So what we'll do is first half an hour we'll do basics है ना, जो आपका day to day life में जो usage होगा electricity का. We'll clear out few terms, है ना, and why the electricity we have got electric fire क्यों होती है, क्या reason है, electric shock क्यों लगता है, and what you should do in case a person is getting electrocuted. ठीक है जी. Sir, aren't we going to do power today? And then next half we'll do some numericals on power. Power we have already done, but we have not practiced numericals on same. Yes, sir. Then my Hanji. So if we have a battery is there, ठीक है ना? Battery में let's say this is I have drawn and this is there. So will any current flow in this? कोई current flow करेगा? No, sir. No current will flow. ठीक है? Okay. How about now? Will any current flow now? No, sir. No, sir. Are you sure? How about if और अगर I पोटेंशियल ज्यादा हुई तो वो जंप कर जाएगा. हाँ जी, अगर पोटेंशियल ज्यादा हुई तो वो जंप कर जाएगा ना, एंड दैट्स वेयर वी हैव गॉट अ स्पार्क इज देयर. व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रिसिटी में बेटा यहाँ पर जो एयर है, दिस गैप इज फिल्ड अप विद एयर, इजंट इट? एंड एयर इज अ गुड इंसुलेटर बट इट विल हैव सम ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी देयर. ठीक है. So if this is 100 volt, maybe nothing will happen. But instead of 100 volt, if I'll make it as 1000 volts or 10,000 volts, you know, then this gap is not sufficient enough to hold the pressure or the charge of electrons. आप समझे, अगर ये बेटा 100 volt है, so what will happen? The electric current is still flowing. Electric current जब flow नहीं कर रहा है, but it has build up, है ना, प्रेशर ये बिल्डअप हो गया. यहाँ पर प्रेशर कैसा बिल्डअप हो गया है कि भाई ये अगर पंप है, पंप में ये पानी की पाइपलाइन है ना, दिस इज पाइपलाइन इज देयर. इफ आई विल ब्लॉक दिस एंड आई स्टार्ट द पंप, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट फिल अप विद वाटर, है ना, विद सर्टेन प्रेशर, है ना. अब यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए जो है आई हैव पुट अ कॉर्क किया, मैंने यहाँ पर एक कॉर्क डाल दिया ऐसे करके, है ना. देन दिस इज लाइक दिस, है ना, ये ऐसे करके है. Now what will happen if we keep on increasing the pressure, increase? So The cork will The come. pipe will burst. cork pipe will burst or cork will come out. So here in this case, if you will increase the voltage, है ना, so wire will melt, or otherwise the electric charge will jump. Electric charge है वो बेटा यहाँ से यहाँ पर jump करेगा. And when the electric charge jumps, है ना, it is fighting against the air which is stopping it from passing through it. और वो जो fight है उस turn में जो है there will be a spark will be there, है ना. Yes. And that spark is what is used in case of electric welding. Electric welding में this spark is being used. Welding में there is very high voltage, है ना. जो welders होते हैं they carry a transformer. So if you have to weld, let's say these two plates, है ना, यहाँ पर ये दो plates हैं, इनको आपको weld करना है. So to weld this, what he will do is he will carry a transformer. यहाँ पर मैं उसको जो है I'm not showing the plug, जो electric plug है, I'm just saying connecting it with battery. Let's say this battery is of very high voltage, है ना. In case of welders they carry a transformer of 3000 volt. ठीक है. और उसमें एक वायर जो है, that one wire they will connect it with the plate which they have to weld. One wire they will have a welding rod will be there. So now what happens is, as he brings the welding rod close to the plate, if he will touch it on the plate, nothing will happen. He brings close to the plate, sufficient close enough, then the arc will be produced, है ना. And that arc is at very high temperature of somewhere around 10,000 degrees Celsius, है ना. that high temperature is there, and that high temperature is in this range only, है ना, इस range में ही है.
and because of that very high temperature, what happens is this sides of the plate will melt and a part of the road will melt, and this molten part, then he keeps on moving, this molten part will keep on solidifying again as he is moving ahead, है ना. जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा, पीछे टेम्परेचर जो वो मोमेंट के लिए दैट टेम्परेचर इज सो हाई, व्हेन द वेल्डर इज मूविंग अहेड, तो पीछे वाला पार्ट जो वो कूल डाउन होगा एंड इट विल स्टार्ट अगेन solidifying itself, and then the welding is being done. So can you explain the working of transformer once? ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट चैप्टर में काम बात करेंगे उसकी. ओके सर. ठीक है, लास्ट में, वो भी नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में. ठीक है सर. एग्री. तो हमारे जो सॉकेट्स में आ रहा है दैट इज 220 वोल्ट इज कमिंग, and he brings a transformer and it converts into 3000 volt, and then the welding is happening. So does soldering works in same mechanism? नहीं बेटा, soldering में तो simple जो है, soldering जो है वो एक हीटर की तरह है ना. तो टिप पर जो है वो सोल्डर वायर रखते हैं, वो मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट मोल्टन पार्ट जो है दे ड्रॉप इट जहां पर भी वायर की सोल्डरिंग करनी होती है उन्हें, है ना. तो सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग इज टोटली डिफरेंट, no relation. Okay, sir. Okay, this was electric welding. If I am interested in household में shocks, है ना, एक और इसमें बात कर लेते हैं. अगर ये मेरे पास बेटा बैटरी है, ठीक है, ये रजिस्टर है, अगर ये मैं ऐसे कर देता हूँ, will the electric current flow now? हाँ जी भाई. सर इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट काम फ्लो करेगा, क्योंकि जो अर्थ है ना, अर्थ इज अ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो अर्थ इज बीइंग कंसीडर्ड, अगर आप इसके पास मतलब अर्थ इज रेडी टू एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द चार्जेस, इट्स रेडी टू एक्सेप्ट एट एनी टाइम. सो हियर द करंट विल फ्लो. ठीक है, बिकॉज द एंड पॉइंट इज लाइक अ डंप यार्ड इज देयर, जहां पर आप जितना मर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लाउड होता है, ठीक है, क्लाउड में लाइटनिंग क्यों हो रही है? सो बिकॉज वाटर वेपर्स जो है व्हेन दे आर राइजिंग, सो दे आर पासिंग थ्रू दिस molecules in the cloud. When they are passing through the molecules in the cloud, they are striking each other and the electrons are getting loose. So wo jo electrons hai, they get deposited at the bottom part and the top part becomes slightly positive charge, and with this negative charge earth mein jo hai yahan par slight positive charge gets accumulated. ठीक है, and when this negative charge of clouds become sufficient enough, around 40 to 50,000 volt of static electricity is developed. That 50,000 volt is sufficient. जो यहाँ आर्क वेल्डिंग में बेटा 3000 वोल्ट था, यहाँ पर दिस इज 50,000 वोल्ट. दैट इज सफिशिएंट फॉर द आर्क टू डेवलप, है ना. एंड दैट आर्क विच इज going from cloud to the earth, we call it as lightning. हम lightning बोल देते हैं. Done? सर वो वाटर ड्रॉपलेट वाला पार्ट समझ नहीं आया. छोड़ दो. वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा जब आपका देखो वाटर वेपर राइज कर रहे हैं, है ना, तो दिस वाटर ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल्स दे विल स्ट्राइक द सॉलिड पार्ट इन क्लाउड. क्लाउड जो है वो व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल्स ऑफ water molecules are there. ठीक है, तो ये जो water vapor when it's passing those crystals of water molecules, of because of friction chafing is happening. Because of that chafing the static electricity is developing. ना same way जैसे आप balloon को you rub on your hair then static electricity develops. ओके सर, अंडरस्टूड. Okay,
Naman is asking, sir, why isn't the arc in a straight line? तो बेटा जो आर्क वेल्डिंग जो आर्क है that will take the fastest path. It will not take the shortest path but the fastest path. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपने यहां पर जो है लेट्स से एक आयरन रॉड भी लगा दी है, ठीक है, सो देन व्हाट विल हैपन इज, ये जो आर्क है, दिस आर्क विल गो लाइक दिस, वो ऐसे जाएगा ना. अब इट टेक्स द फास्टेस्ट पाथ टू रीच द अर्थ. जो भी पाथ जो है फास्टेस्ट होगा वो वाला पाथ फॉलो करके इट विल रीच द अर्थ. So in case of a normal lightning, there are water droplets are there all over. ठीक है, and electricity के लिए water is of less resistance than air molecules. So when the electricity is falling, it takes the fastest path, है ना, जो भी fastest path होगा, that path it takes when it's falling down. Okay, sir. Sir, how does lightning rod works? Lightning rod बेटा when क्लास 8 का टॉपिक है ना आपका, जो बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, सो बिल्डिंग्स में दिस इज जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वहां पर लाइटनिंग रोड लगाते हैं. तो इस लाइटनिंग रोड का फायदा क्या, दिस लाइटनिंग रोड इज कनेक्टेड टू द अर्थ वाया अ थिक कॉपर वायर. एक थिक कॉपर वायर इंसुलेटेड, है ना, पूरी बिल्डिंग में ऐसे लेंथ में रन कर रही होती है और ये ऊपर लाइटनिंग रोड होती है. दिस लाइटनिंग रोड विल मेक श्योर कि इस एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइटनिंग है, दैट लाइटनिंग विल नॉट गो एंड फॉल लाइक दिस. नहीं, दिस लाइटनिंग विल प्रेफरेबली टेक अ पाथ ऑफ लाइटनिंग रोड एंड फॉल लाइक दिस, बिकॉज दैट विल बिकम द फास्टेस्ट पाथ. तो हाई राइज बिल्डिंग की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, समवेयर बिटवीन 300 to 400 meters, you can say the lightning will never fall because lightning will take the shortest path through lightning rod to the ground. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर लाइटनिंग रोड नहीं होगी, then what will happen is lightning is going to take the shortest path. So what happens when the lightning is falling here, it may fall on the building, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो है there are electric circuits are there and through those electric circuits it's going down. Now think on it, your full building का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें instead of 220 volt 50,000 volt of current is flowing, है ना, and then basically the electric wires will catch fire or maybe the building will catch fire. हाँ जी, अंडरस्टूड. सर तो हर बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग रॉड होती Most of the high rise building have lighting roads. ठीक है. है, ओके. अब country to country depends, है ना, few have made it mandatory to have the lightning road. So why does sometimes lightning go from cloud to cloud? तो बेटा ये तो मैंने आपको बताया ना, the charge is getting built up. और मान लो यहाँ पर this is one more cloud is there and this is positive charge is there, this is negative is there, then this electron will flow from one cloud to another cloud, है ना, then again lightning will be there. ठीक है वेदांत? ओके ओके. तो हमारे सिस्टम में बेटा लेट्स से दिस इज करंट इज कमिंग. ठीक है, मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा सिस्टम बना रहा हूँ. ठीक है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का. सो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट का जो ट्रांसफार्मर था वहां से मैंने एक तार डाली, बिजली चुरा रहा हूँ मैं, और वो तार सीधा मेरे घर पे आ गई. 220 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है. दिस इज देयर इन द सर्किट. नाउ दिस आई एम यूजिंग टू रन अ वॉशिंग मशीन. तो ये मेरी वॉशिंग मशीन आ गई बेटा, है ना. अब वॉशिंग मशीन में ये वायर कहाँ जाएगी, दिस विल गो टू द मोटर. सो ये वॉशिंग मशीन की मोटर में ये वायर, ठीक है, and then there is one return wire is there and this return wire is going.
ठीक है, एक नॉर्मल सा सर्किट बनाया है मैंने, और ये हमारी यहाँ पर मोटर है। अब यहाँ पर जो है, जब आप वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो करंट आ रहा है वो डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में नहीं आ रहा है ना। करंट इज गोइंग टू द सॉकेट, ठीक है, ये सॉकेट में जा रहा है। यहाँ पर ये स्विच है मेरे पास, एंड दिस इज देयर। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। तो जब मैं ऑन कर रहा हूं तो वॉशिंग मशीन के अंदर करंट इज गोइंग एंड देन इट इज लीविंग द वॉशिंग मशीन। नाउ फर्दर अगेन वॉशिंग मशीन के अंदर भी एक स्विच हो सकता है, ठीक है। सो दिस गोज हियर, और ये एक स्विच हो गया, एंड दिस गोज हियर, राइट, एंड दिस इज वॉशिंग मशीन स्विच। ये वॉशिंग मशीन का स्विच है यहाँ पर हमारे पास, ओके। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, ये जो करंट है बेटा ये पूरा फुली इंसुलेटेड वायर में है ना, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर। नाउ बिकॉज इट्स वॉशिंग मशीन इज यूज्ड, रोटेटरी पार्ट्स हैं, क्वाइट पॉसिबली द इंसुलेशन मे गिव अप, ठीक है, मे बी जस्ट बिफोर द मोटर और जस्ट आफ्टर द मोटर, ठीक है, समवेयर द इंसुलेशन इज गिविंग अप। तो अगर इंसुलेशन ने गिव अप कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन इज this wire is getting connected to the body of the washing machine also, है ना, ये washing machine की बॉडी के साथ ही कनेक्ट हो गया है, ठीक है। so what's going to happen is, जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्विच, 1 मिनट, हाँ जी, so when you are switched on, तो स्विच ऑन करने से ये जो करंट है ना, दिस करंट इज गोइंग इनटू फुल वॉशिंग मशीन, है ना, ये पूरी वॉशिंग मशीन में करंट चला गया है, ठीक है। करंट अभी मोटर में नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि मोटर का जो स्विच है वो हमने ऑन नहीं किया है, बट बिफोर दैट द करंट हैज गॉन इनटू फुल वॉशिंग मशीन, वो पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन में करंट चला गया है, ठीक है, बिकॉज द इंसुलेशन इज गिवन अवे, जहां से जो है वायर इज गोइंग इनसाइड द वॉशिंग मशीन, देयर द इंसुलेशन इज गिवन अवे, and the live wire, open wire is touching the washing machine and it's full, has got current into it, ठीक है। so when you have, as soon as you connect this wire, आपने switch on किया, जैसे ही आपने इसको on किया, now the current is there in the full washing machine. when you are going to, जैसे ही आप बेटा यहाँ पर आएंगे वॉशिंग मशीन को ऑन करने के लिए, you will touch the washing machine, और जैसे ही आप वॉशिंग मशीन को टच करेंगे, current will flow through you and into the ground, ठीक है। this is also a circuit is getting completed, है ना, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखें, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो आपका वॉशिंग मशीन है उसकी बॉडी के पास भी कोई रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर कहाँ पर है? रजिस्टर तो मोटर में है ना, मोटर वाज गवर्निंग, मोटर डिसाइड कर रही थी कितना करंट फ्लो करेगा, but otherwise there is no resistor here. It's an open wire, it's an open wire, open. A large amount of current will flow in the circuit. Why? Because there is no actual resistor which is present in the circuit. Washing machine usually it will draw maybe 4 or 5 ampere of current, but now here there is no resistor, 220 voltage supply is there. A large amount of current, maybe 400, 600 ampere of current will flow and the person will get electrocuted. Understood this? डेथ हो जाएगी। Provided that the person is barefooted. Provided person is barefooted, और अगर पर्सन ने बेटा थिन मतलब स्लीपर्स पहनी हुई है, तो हर इंसुलेटर का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना। तो अगर देखो आप, ऐसा नहीं है कि पतले से रबर ग्लव्स पहन के जो है मोटी वायर्स पे काम कर सकते हैं, है ना, दोज विल नॉट बी इफेक्टिव। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस टाइप के फुटवियर्स पहने हुए। अगर आपने नॉर्मल जो बाथरूम स्लीपर्स हैं रबर वाले, तो उसमें नथिंग विल हैपन बिकॉज दोज आर सफिशिएंट गुड इनफ इंसुलेटर्स। सो
otherwise you will get electrocuted. ठीक है, barefoot है तो then definitely person will get electrocuted. सर देन डेथ है सर, पक्का ही। पक्का का क्या मतलब है, यहाँ कोई भविष्यवाणी थोड़ा हो रही है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यस। अब यहाँ पर जो है सेफ्टी मेजर्स हैं, व्हाट सेफ्टी मेजर्स विल यू टेक, ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स के नाम पर जो है सबसे पहला जो सेफ्टी मेजर है दैट इज इम्प्लीमेंटेड इज कि हम इस वायर में जो है इनिशियली व्हाट दे डिड वाज दे विल पुट अ फ्यूज, वो एक फ्यूज डाल देंगे, ठीक है। हमें पता है कि जो H है दैट इज इक्वल टू I² RT, ज्यादा करंट फ्लो करेगा देन आपका ज्यादा हीट होगा, हीटिंग होगा। तो यहाँ पर जो वायर है वो वायर जो है थिन वायर इज बीइंग पुट इन द फ्यूज, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट आप ड्रॉ करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ्यूज के ऊपर लिखा हुआ था 10 एम्पियर फ्यूज, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही जो है ये 10 एम्पियर को क्रॉस करेगा 11 एम्पियर और 12 एम्पियर, ये जो फ्यूज की वायर है दिस विल गेट मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो गई, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया देन द करंट विल स्टॉप। तो आपको क्या हुआ, जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन का मेन स्विच ऑन किया उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेस द बटन ऑन द वॉशिंग मशीन इटसेल्फ, व्हेन यू आर टचिंग द वॉशिंग मशीन, आपको एक जोर का झटका लगेगा, बट एट द सेम टाइम जो आपका जो मेन फ्यूज है ना, घर के बाहर जो फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा। सो योर लाइफ इज सेफ्ड, घर की बिजली चली गई है ना, डांट पड़ रही है बट दैट्स ओके, so you just need to change the fuse, but before changing the fuse you have to check कि वो fuse blow off क्यों हुआ है। Understood till here? सर पहला तो हो सकता है ना कि बिजली ना चुराएं ट्रांसफार्मर से। अरे चुरा नहीं रहे हैं भाई, ये नॉर्मल सप्लाई की बात कर रहे हैं हम अभी। ओ अच्छा, मेरे को लगा सर आपने पहले बोला था ट्रांसफार्मर। नहीं नहीं, ओके ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो फ्यूज है ना, पहले क्या होता था देखो मैं आपको बताऊं, घर के बाहर जो है जो फ्यूज लगा होता था वो फ्यूज जो है ना समथिंग लाइक दिस है ना, अगर आपने देखा हो पुरानी मूवीज में ये फ्यूज ऐसे करके होते थे और यहाँ पर जो है पिन होती थी और यहाँ पर जो है थिन वायर होती थी। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ फ्यूज? ये प्लग इन टाइप के फ्यूज होते थे, तो यू प्लग इट इन एंड द करंट इज पासिंग थ्रू इट। यस सर, देखा है सर। और गांव में क्या होता था कि नॉट इवन गांव, मतलब जो सिटीज में फ्यूज ब्लो ऑफ हो गया, फ्यूज की वायर चेंज की, फिर ब्लो ऑफ हो गया और तेरी तो फिर उठाकर मोटी वायर डाल दी, ये बार बार फ्यूज हो रहा है, फ्यूज का पर्पस ही गोल हो गया है ना। तो फ्यूज की वायर हैज टू बी थिन इनफ डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज के लिए ये फ्यूज यूज हो रहा है। So if household equipments are withdrawing a current of 10 ampere, usually you put a fuse of 20 ampere. ठीक है, so if any time a significantly large amount of current is drawn, so then that means there is some jiggly piggery is there and you have to check है ना कि fuse blow off क्यों हुआ है। Agreed? यस सर। Okay. वॉशिंग मशीन के अंदर का जो मोटर है वो फ्यूज नहीं होगा? वॉशिंग मशीन बेटा हमने तो अभी चालू ही नहीं की वॉशिंग मशीन, अब हाँ, मोटर सर। के अंदर कोई फ्यूज नहीं होता है ना, पहले इक्विपमेंट्स के साथ फ्यूज लगे होते थे, नाउ इक्विपमेंट्स के साथ फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज दिस फ्यूज यू हैव टू चेंज नाउ एंड देन, तो इंस्टेड ऑफ फ्यूज नाउ व्हाट वी यूज इज, क्या यूज करते हैं भाई हम? MCB MCB है ना, MCB इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाँ सर, 8 में पढ़ा है। ठीक है। MCB जो है it works on heating effect also, it works on magnetic effect also depending on किस टाइप का MCB है। So as soon as the large amount of current is withdrawn, the MCB trip हो जाता है, ठीक है। तो MCB जो है वो आपका, अगर आप बाहर अपने हाउस होल्ड के मेन सर्किट में जाके देखेंगे तो हर रूम का एक अलग MCB होता है बेटा, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ यूज हो रहा है, तो जैसे बेडरूम का MCB जो है यूजुअली 16 एम्पियर का होगा, ठीक है, सभी जगह पे यूजुअली 16 एम्पियर का MCB रहता है।
अगर वॉशरूम की बात करें तो वहां पर एमसीबी हो सकता है 32 एम्पियर का, इफ यू हैव गॉट गीजर एंड अदर इक्विपमेंट्स आर देयर। जो एसी और पावर सप्लाई होती है, ठीक है, उनकी वायर्स ही अलग जा रही होती हैं और उनका एमसीबी जो है वो ज्यादा एम्पियर का होता है। नाउ थिंग इज यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ दिस एमसीबी एंड एवरीथिंग, जो जोर का झटका है वो तो लगा ही ना आपको, और उतना जोर का झटका हो सकता है कि 2-3% का तो हार्ट वहीं पर स्टॉप हो जाए, इतनी तेज झटका लगा, झटके की वजह से हो जाए या फिर डर के मारे हो तेरी बच गए और उस घबराहट में ही फिर जो है हार्ट फेलियर इज गया। ठीक है, हाउ टू स्टॉप दैट, जोर का झटका भी कैसे रोकना है। ठीक है, सो फॉर दैट यू आर हैविंग अर्थिंग इज देयर, है ना, अर्थ वायर इज देयर। तो अर्थ वायर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे बेसिकली ये जो वायर्स है ना, दिस वायर, ये रिटर्न वाली जो वायर है, दिस गोज लाइक दिस, है ना, ये ऐसे जा रही होती है ये रिटर्न की वायर। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज अ अर्थ वायर इज देयर। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन से जो आपका 3 पिन का सॉकेट आएगा, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन से आएगा, उस सॉकेट में एक अर्थ की ग्रीन कलर की वायर होगी। ठीक है, ये अर्थ की ग्रीन कलर की वायर कहाँ कनेक्टेड है, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू मोटर और एनीथिंग, इट इज जस्ट वेल्डेड टू द फ्रेम ऑफ वॉशिंग मशीन और टू द फ्रेम ऑफ मोटर। ठीक है, सिर्फ ये फ्रेम पे वेल्डेड है एंड दिस वायर कम्स हियर इन दिस 3 पिन सॉकेट, और इस सॉकेट से देयर विल बी वन वायर विच विल बी गोइंग, अर्थ वायर। दिस वायर हैज नथिंग टू डू विद द करंट सप्लाई ऑफ द by the government, but this wire is connected to the building। बिल्डिंग में अर्थ की एक वायर होगी, ये उस पे जाकर कनेक्ट होगी, एंड दिस इज द सर्किट इज देयर। ठीक है, ये अर्थ की वायर आई है बेटा आपका, एंड दिस अर्थ वायर इज देयर। सर इसका नेसेसिटी क्या है? हाँ जी, एज सुन एज, जैसे ही आप बेटा यहाँ पर सर्किट को ऑन करेंगे, ठीक है, सर्किट को ऑन करते ही क्या हो रहा है, ये जो आपका करंट है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस करंट, 1 मिनट। ओके, ये जो आपका ये जो करंट आ रहा है, ठीक है, ये करंट आया, जैसे ही आपने ऑन किया तो ये करंट यहाँ से पास हो रहा है, सर्किट ऑन करते ही, है ना, सर्किट ऑन करते ही ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ से ये करंट जो है पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन में चला जाएगा। वॉशिंग मशीन में जाते ही ये करंट जो है अर्थ वायर पे, क्योंकि अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द वॉशिंग मशीन, इट विल गो अप इन द सर्किट, इट विल गो हियर, it will go and it will go into the earth. As soon as you will switch on, जैसे ही आप ऑन करेंगे वॉशिंग मशीन का स्विच, ऑन करते ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग एंड thus एमसीबी विल ट्रिप। वॉशिंग मशीन स्विच ऑन करते ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है ज्यादा ही लेजी हैं और आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन के अगेंस्ट ऐसे इंक्लाइन करके और उसके बाद फिर स्विच ऑन कर रहे हैं, देन आपको झटका लगेगा। ठीक है, और अदरवाइज यू आर सेफ। ठीक है, तो समटाइम्स दिस हैपन, यू नो, लेडीज एट द हाउस दे आर स्विचिंग ऑन वॉशिंग मशीन, है ना, स्पेशली मेड है, वो वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन किया, ऑन करते ही एमसीबी ट्रिप, तो वो पावर प्लग रहता है, तो यूजुअली देन यू गो आउट एंड चेक कि एमसीबी ट्रिप हो गया है। आप एमसीबी ऑन करते हैं तो वो ऑन ही नहीं हो रहा है ना, वो बार बार ट्रिप हो रहा है, ऑटो ट्रिप हो रहा है। ठीक है, देन सम पीपल से वो एमसीबी खराब हो गया, नहीं नहीं भाई, प्लीज गो बैक एंड चेक, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन किया था वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। दिस इज व्हाट इज शॉर्ट सर्किट इज हैपनिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज गेटिंग विथड्रॉन, सो गो एंड गेट रेक्टिफाइड। सर तो बीच में कुछ रजिस्टर वगैरह भी लगने चाहिए ना? कहाँ पर रजिस्टर? तो सर ये एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो सर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा? उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर थी ना, वो रजिस्टर था, ओह अच्छा, ठीक है। वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर फिर तो डायरेक्ट वॉशिंग मशीन की बॉडी को अच्छे से इंसुलेटर से बनाना चाहिए।
हाँ सब जी, powder पहले में मेटेलिक बॉडी होती थी वॉशिंग मशीन की, अब प्लास्टिक बॉडी होती है, ठीक है। और अगर मेटेलिक होती है तो वो पेंटेड होती है पूरी अच्छे से। तो यूजुअली क्या होता है, इट्स अबाउट 3-4 इयर्स 5 इयर्स पुरानी जो मशीन है, उनके अंदर जो वायर, ठीक है, जो वायर जो है आपका इसमें जा रही है बेटा, मोटर में जा रही है, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है समटाइम्स, एंड द करंट इज गोइंग इन द फुल मोटर, ठीक है। बट स्टिल द पर्सन आर सेफ, है ना, क्योंकि मोटर के बियॉन्ड उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के लिए। बट क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है, वाटर से रिलेटेड जॉब्स हो रही हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रिपिंग एंड द वाटर इज देयर एट द फ्लोर, and then it is finding the way, and then the short circuit will happen. But now things are much more safe, I'll say at least 50 times safer than previous. पहले जो है washing machine में shock लगना was a very normal this thing, means its number of cases have reduced 100 times now, because before all washing machines were of metallic body. सर ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी डिवाइस को डायरेक्ट बंद मत करो? डायरेक्ट बंद ना करो मतलब फिर पड़ोसियों के मतलब जाके बंद करो? नहीं सी सर, मतलब पहले वो उसका स्विच, जो डिवाइस का स्विच है, देन जो मेन स्विच है। ओके बेटा, डिवाइस का स्विच जो है दैट इज एट टाइम्स मेंट टू कट ऑफ द पावर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। दैट्स मींस जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर टेक्स इट टाइम टू स्विच ऑफ द थिंग्स, इजंट इट? तो प्रोग्राम सब स्विच ऑफ करता है, फिर पावर ऑफ करता है। और आप डायरेक्टली स्विच ऑफ करेंगे तो वो इंटरनली कोई भी प्रोग्राम ऑफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई जैसे कि आप इक्विपमेंट पहले ऑफ करें, इक्विपमेंट को ऑफ करते हैं तो समटाइम्स इक्विपमेंट इज डूइंग द स्विचिंग ऑफ प्रोसेस इन 2 steps or 3 steps. ओके सर, मेरे को लगा कि कोई वो उससे रिलेटेड हो। नहीं, इट्स फॉर लॉन्गिटिविटी ऑफ द इक्विपमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कंप्यूटर को मेन पावर से भी ऑफ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम ऑन नहीं होगा, बट उसकी लॉन्गिटिविटी जो है दैट विल गेट अफेक्टेड। ठीक है सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन दिस? ओके, सो व्हाट इज ओवरहीटिंग? हाँ जी, ओवरहीटिंग इज, देखो बेटा ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। अब स्विच बोर्ड में यहाँ पर जो है एक 3 पिन सॉकेट होगा आपका। 3 पिन सॉकेट जो है एक नॉर्मल सॉकेट होता है और एक पावर सॉकेट होता है, ठीक है। जो पावर सॉकेट होता है उसमें जो वायर है बेटा वो मोटी वायर आती है पावर सॉकेट में, है ना। दैट थिकर वायर मींस लेसर द रेजिस्टेंस मींस मोर करंट कैन फ्लो, ठीक है। इट विल नॉट गेट हीटेड अप फास्टर, ठीक है। तो ये जो थिक वायर है दे कैन बी यू नो फॉर 15 एम्पियर टू 30 एम्पियर करंट के लिए। देन इन short smaller sockets the wire which is coming is relatively thin. अब आप कहोगे सर यहाँ पर थिक क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? भाई more thicker the wire, more will be the cost of the wire, है ना, and costing is a part of it. So when they say Havells wire doesn't catch fire, only thing is nothing, bullshit, है ना। Havells wire are slightly thicker, that's all. So यहाँ पर अगर Havells की आप स्मॉल थिन वायर लेंगे तो दे विल आल्सो कैच फायर भाई। सो दिस इज मेंट फॉर लेट्स से 5 एम्पियर, ठीक है। नाउ आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो है एक सॉकेट लगाया, उसके साथ जो है यू हैव पुट अ मल्टी प्लग। अब मल्टी प्लग में यहाँ पर जो है यू हैव पुट कंप्यूटर, नो इश्यूज, है ना, इट्स ड्राइंग लेट्स से 0.2 एम्पियर करंट। यहाँ पर यू हैव पुट प्रिंटर, printer is drawing 2 ampere current। फिर यहाँ पर you have put photocopier is again drawing 2 ampere current, है ना। यहाँ पर you have put one more multi plug, then here you are again putting some printer or refrigerator, है ना, like this you are putting। So what's happening is you are overloading, आप overload कर रहे हैं ना,
and there will be a time when instead of 5 ampere current you are actually withdrawing, आप इस छोटे से socket से you are withdrawing 7 ampere, 8 ampere, 9 ampere. So more current are getting withdrawn, the wire will get more heated up. At one point the wire will get melt, and then there will be a fire. या तो सिर्फ melting होगी, melt of wire, but usually देखो wire when they are getting melted ना, आप सोचिए copper wire is getting melt, so that's molten copper is very hot, so it's going to penetrate all the plastic sockets, insulation, everything, and there is a chance of fire. This is what is overloading. Okay, sir. So what will happen if we'll put wire in the two switch? तो बेटा यहाँ पर ना ये जो वायर है ये आपकी ग्राउंड है ना, ग्राउंड वायर इज देयर, ठीक है। इसमें एक वायर है यहाँ पर जो कनेक्ट होगा वो लाइव वायर, कि इसके अंदर करंट है भाई, सावधान रहें। एंड दिस इज अ रिटर्न वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब समझिए आप इस चीज को। socket. हाँ जी अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें, यहाँ पर वायर अगर आप इंसर्ट कर दें, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। एग्रीड ऑन दिस? सर इनमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इनमें तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, देयर इज नो करंट फ्लोइंग, ठीक है। अब दोज हु आर देयर विद मी इन क्लास 6 7th, कौन कौन था? पार्थ शर्मा, दक्ष, है ना। तो ये हम ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ना, वी डू दिस एक्सपेरिमेंट। कोई है यहाँ पर जिसने किया एक्सपेरिमेंट मेरे साथ? रैकेट वाला? रैकेट वाला नहीं, स्केल से हमने वायर कनेक्ट की थी, पहले स्पार्क प्रोड्यूस किया था एंड देन शॉर्ट सर्किट, एमसीबी ट्रिप्ड। हाँ सर, हाँ सर, करा हुआ है हम लोगों ने। हाँ जी, अंगद इज देयर, है ना। तो वी हैड एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जो है 2 पिन का स्विच लगाया था, और इस स्विच के साथ जो है देन दिस 2 वायर्स विल वर देयर, है ना, ये 2 वायर्स थी, ठीक है। इन 2 वायर्स को हमने फिर बड़े से स्केल पे जो है ऐसे टेप से लगाया था, और फिर थोड़ा सा मींस दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम माय बॉडी बेसिकली, एंड देन दिस 2 वायर्स, दिस वर लाइक ओपन लाइव वायर नाउ, है ना। इनमें से ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल कनेक्ट देम, just before I will touch, 220 volt will be sufficient to create a spark, and with the spark large amount of current will flow from the live wire to the neutral wire. This large amount of current is sufficient enough to trip MCB. तो जैसे ही आप उनको पास लाएंगे, there will be a small spark will be there and MCB will trip. ओके सर। ठीक है, दिस थिंग इज सेम एज, ये एग्जैक्टली सेम है अगर आप यहाँ पर 2 वायर्स इंसर्ट कर दें डायरेक्टली, है ना, नो डिफरेंस। आप ऐसे वायर इंसर्ट कर दें, एमसीबी विल ट्रिप। इट्स अ शॉर्ट सर्किट, है ना, ये शॉर्ट सर्किट है, नो रजिस्टर इज देयर, लार्ज करंट विल फ्लो, एमसीबी विल ट्रिप। ठीक है, डोंट परफॉर्म प्लीज, है ना, इट्स वेरी रिस्की until and unless you have some adult is there around, है ना। I knew what I was doing, so very risky, है ना, don't do it please. मजे करंट वाले में आते थे जब सबको लगता था। हाँ रैकेट वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, मॉस्किटो रैकेट। चलो जी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एनी अदर डाउट? नो सर, क्लियर है। Let's do some numericals. Solve this.
हाँ जी भाई, आंसर। ओके, नमन, समीक आपका गलत है, वेदांत करेक्ट। प्रार्थना करेक्ट। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पर डाउट आ रहा है, मुझे तो लगा बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, दिस टू बल्ब्स आर देयर, सो दिस इज power is equals to V into I, so it's drawing its own current. Power is how much? 100 volt. 100 watt is equals to 220 volt into I1. तो आपके पास I1 कितना आ गया? I1 is 100 upon 220. सेम वे में यहाँ पर I2 is 40 upon 220 हो जाएगा। ठीक है, ये I2 है, this is I1, this is your I. So your I is I1 plus I2. So that is 100 plus 220 plus 40 by 220. So 140 by 220 ampere. So 0.6 था। हाँ जी, this is 7 by 11 ampere. 1 by 11 कितना होता है? 0.99. तो 7 by 11 is 0.6363 ampere. Yes. ठीक है जी, Yes, sir. ओके। जस्ट अ सेकेंड बेटा। सर अगर यहाँ पर जो पैरेलल कनेक्शन दे रखा है, अगर मेन सप्लाई वोल्टेज की डिफरेंट होती तो सर हम पहले रेजिस्टेंस निकालते दोनों का, फिर उससे करते ना फॉर्मूला से। हाँ जी, ठीक है सर। देखो मैं इफेक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ। अगर ये सीरीज में है, ठीक है, एंड दिस इज बैटरी इज देयर, दिस इज V वोल्ट, दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्टिव पावर विड्रॉन होगा, दैट विल बी हाउ मच?
सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन. Find effective power if two bulb with power P1 and P2 are connected in series. देखो अगर मैं P1 की बात करूंगा बेटा, ठीक है, सो power is equals to VI and power is also equals to V square by R. सर ये तो सीधा पावर 1 प्लस पावर 2 हो जाएगा. नहीं नहीं, देख लो एक बार, P1 किसके इक्वल होगा बताओ? वोल्टेज तो सेम है ना? नहीं, So, V वोल्टेज square अलग by- अलग है. सर करंट सेम है. नहीं, करंट सर सेम है. करंट सेम है, वोल्टेज अलग है. हाँ, वोल्टेज अलग है. तो यहाँ पर जो है पावर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड तो 1 सेकेंड. हाँ जी, यहाँ पर पावर जो है V को मैं लूंगा तो दिस इज I स्क्वायर R हो जाएगी हमारी पावर, है ना? P1 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R R1. P2 is equals to I square R2, and when we talk about power is equals to I square R. सर R1 प्लस R2 R होता है तो हम हाँ कह जी. सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. हाँ जी, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R को जो है R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2. So this is equals to P1 plus P2. सर यस सर. हाँ जी बेटा. सर हम P1 इज इक्वल्स टू I इंटू V1 और P2 इज इक्वल्स टू I इंटू V2, तो सर P1 प्लस P2 IV हो जाएगा ना? नहीं, फिर से बोलो. सर अगर P1 प्लस P2 निकालना है वो P के इक्वल होगा. ओके सर. क्लियर है? सर अगर पैरेलल में होता तो 1/P1 प्लस 1/P2 हो जाता. हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे रेजिस्टेंस में होता है सेम ही होगा वैसे ही. हाँ जी. ओके सर. Okay. That's all this. Number of electric lamps designed to be used on a 220-volt electric supply are rated 10 watt each. Calculate the number of lamps that can be connected in parallel to each other across the two wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere.
Number of electric lamps designed to be used on a 220 volt is rated 10 watt each. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ये. देख लें एक बार. सर एक सेकंड दीजिए, बस सॉल्व होने वाला है. ओके. सर आ गया आंसर, सर पोस्ट कितना करूं? है? कितना सर है? 110. यस सर 110 है. वेरी गुड. आयुष बताओ कैसे किया आपने? यस सर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर एक एक का रेजिस्टेंस निकाल दिया, एक लैंप का. सर मेरा एक लैंप का रेजिस्टेंस जो आया था 4840 ओम्स आ गया था. फिर ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे आया आपका? सर वी पार इज स्क्वायर बाय इक्वल टू आर. V square by R. So Yes, par sir. is 110 volt. Sorry, par is 10 volt, 10 watt, and this is 220 into 220 by R. You know, सर तो this gets 4840 cancelled. आ गया. So resistance is 4840 0 ohm. ओम. यस सर. सर फिर उसके बाद मैंने एक काम किया कि आई 5 एम्पेयर रखा. सर पूरे सर्किट में वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो मैंने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया 44 ओम. V इज इक्वल टू आई आर से. तो Okay, सर अब very मेरे good. को He is पता है. saying कि यहाँ पर जो total current withdrawn है, that's maximum allowed is 5 ampere. अगर टोटल करंट 5 एम्पियर का ड्रॉन अलाउड है, तो जो आपका यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट. सो R इक्विवेलेंट इज 220 अपॉन 5. सो दिस इज योर 444 ohms. दिस इज योर R इक्विवेलेंट. हाँ जी. तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 1/4840 बस बस एक मिनट है ना. इन पैरेलल सर्किट हमने पहले डिस्कस किया था, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन पैरेलल सर्किट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाय N. तो 44 इज इक्वल्स टू 4840 डिवाइडेड बाय N. यहाँ पर सॉल्व करेंगे. N इज कमिंग एज 110 बल्ब. यही किया. सर एक और तरीके से कर सकते हो. एक मिनट ये कॉपी कर ले पहले, है ना. देन नमन आई विल कम टू यू इन 30 सेकेंड्स. हाँ जी नमन बोलो. सर जैसे ईच लैंप अगर 20 ओम के अक्रॉस लगाए तो वो 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाए तो V इंटू आई इक्वल टू पावर हो जाता है. तो उससे हम इंडिविजुअल लैंप का जो करंट ड्रॉ करेगा वो निकल जाएगा. और जब हम फिर से सर जैसे एक लैंप का खाली कंसिडर करें तो 220 इंटू जितना वो करंट ड्रॉ करेगा इक्वल टू 10 वोल्ट होगा. सर और वैसे हम कितने भी कलेक्ट कर ले पैरेलल में वो वोल्टेज सेम ही रहेगी, करंट भी ड्रॉन सेम रहेगा. उस टोटल करंट को इक्वल टू 5 एम्पियर करना है. वेरी गुड. अच्छा हाँ सर, ये भी कर सकते हैं सर. सर ज्यादा शॉर्ट हुए. हाँ, ही सेइंग कि सर यहाँ पर जो है ये 10 वॉट गिवन है. लेट्स से हर एक में जो करंट है वो स्मॉल आई ड्रॉ हो रहा है. अगर करंट स्मॉल आई ड्रॉ हो रहा है और यहाँ पर जो है आपका वोल्टेज जो है वो तो 220 है, पैरेलल सर्किट है, तो 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 220 इंटू स्मॉल आई. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल आई आ गया. स्मॉल आई इज 1/22. ठीक है. और टोटल ऐसे हर सर्किट जो है वो स्मॉल आई कैरी करेगा. टोटल करंट विल बी n into small I, number of bulbs into small I. This is equals to total current. So n into 1/22 is equals to 5 ampere. N is 110. Very good, Naman. यस सर मैंने भी ऐसे ही.
वेरी गुड। साइंस में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है? मैग्नेटिक। फिजिक्स तो लिया ही है, बायो ले लेते हैं। एक बायो ले लेते हैं, फिर वापस केमिस्ट्री, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। Sir, can you explain, sir, in a parallel circuit, R equivalent is R by NQ? बेटा अगर सारे रजिस्टर सेम होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू n टाइम्स, है ना, सारे के सारे सेम है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज n अपॉन R और R इक्विवेलेंट इज R by n। Okay. सर हाँ जी बेटा। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो एक बल्ब की पावर 10 वॉट है, 10 वॉट इंटू n इज इक्वल टू 220 इंटू 5 नहीं कर सकते? टेन वॉट इंटू n n। नंबर हाँ ऑफ जी। बल्ब्स। नहीं बेटा, तो आपका ऐसा नहीं है कि पैरेलल में जो वॉट जो है वो सीधा ऐड हो जाएगा, है ना? सर पैरेलल में तो वो होता है ना, रेसिप्रोकल होता है नहीं, पावर का। पैरेलल में आई थिंक give me some time on this, है ना? what she is saying is that is correct। तो पैरेलल में अगर हम बात करेंगे, लेट मी कम बैक ऑन दैट, है ना? पैरेलल में आई थिंक इट इज ऐड होता है और सीरीज में रेसिप्रोकल होता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो बिकॉज अगर अगर ये वाला इक्वेशन लिखी तब भी 110 लैम्प्स ही आ रहा है। हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। तो हमने कहाँ गलती की थी सीरीज में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे? सो वी आर सेइंग दिस इज P1, दिस इज P2, है ना? इसको हमें V1 लेना चाहिए, इसको V2 लेना चाहिए, ये V है, and we'll say V is equals to V1 plus V2 and P1 is equals to your V1 into I, this is V1 square by R। ठीक है, so this is your P equivalent, एक मिनट, P is V square by R, तो V square is PR। Just a second, just a second। सर इसमें वी आई से ही करेंगे क्योंकि आई सेम रहता है ना। एक मिनट बेटा। आई सेम रहता है और हम आर इक्विवेलेंट से उसको कंपेयर कर रहे हैं ना? यस सर। And सर हमने शायद ठीक निकाला था पहले। P is R is P by I square। Let me just check the derivation for that, है ना? I'll post it later on। ठीक है जी, क्लास 8 है ज्वाइन, है ना बेटा? आपने रॉन्ग आईडी पर ज्वाइन किया है। सर इसमें हम सिंपल ऐसे नहीं कर सकते सर, अगर हम पावर 1 और पावर 2 को ऐड करते हैं तो आई कॉमन आ जाता है, V1 प्लस V2 हमारा होल भी हो जाता है, तो सर हमारा तो VI बन गया, मतलब टोटल पावर आ गई, तो सर पावर तो ऐड ही हो रही है ना सीधा।
ओके ये ना देखो पावर वाला जो है क्लास 12th का टॉपिक है, बट व्हाट आई कैन रिकॉल इज इन केस ऑफ सीरीज में 1/p इज 1/p1 प्लस 1/p2 होता है. इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 होता है. ठीक है, डेरिवेशन लेट मी जस्ट चेक आउट एंड कंफर्म इट. ठीक है जी, चलो विल एंड द सर सेशन हियर. समझ गया सर, हो गया डेरिवेशन इसका, हो गया, समझ हाँ जी, गया क्या किया आपने बताओ. सर. हाँ यस सर. सर तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पावर 1 ले लिया v²/r1 सर, फिर r1 ले लिया v²/p1, r2 ले लिया v²/p2, फिर r1 प्लस r2 कर दिया. तो एक मिनट फिर से बताओ क्या किया आपने. p1 इज सर p1 लिया v²/r1. v1 स्क्वायर बाय r1. हाँ जी सर, v1²/r1. p2 इज p2 इज v2 स्क्वायर बाय, हाँ जी. और सर मैंने फिर r/v² इज इक्वल टू, अच्छा वोल्टेज डिफरेंट है, ओके ओके, नहीं नहीं, अच्छा हाँ सर, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस ऐसे होता है ना सर, तो r का हाँ वैल्यू जी, समझ. तो यहाँ पे r1 हमारे पास आ गया Yes, sir. v1 स्क्वायर बाय p1. r2 हमारे पास आ गया है v2 स्क्वायर बाय p2, है ना. Yes, sir, yes, sir. r Sir. is equals to r1 plus r2. So this is v square by p is v1 square by p1 plus v2 square by p2. बट चीजें अभी भी कंफर्म नहीं हुई है ना. सर लेट मी जस्ट चेक आउट, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. हाँ जी नमन. ठीक है सर जो P1 P2 रेटिंग्स होती हैं वो तो उसके लिए V के लिए होंगी ना रेटिंग्स, यहाँ V1 V2 लेना गलत होगा. जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो रेटिंग के हिसाब हाँ से तो होगा. ये मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेटिंग है वॉट वो पर्टिकुलर 220 वोल्ट के लिए है, और वो 220 वोल्ट जो है पैरेलल के लिए कनेक्टिविटी के लिए है. तो यहाँ पर हम उसको रेटिंग को गलत कर देंगे. आप सही बोल रहे हैं. सर तो R1 v²/p1 होगा और R2 v²/p2. वहां से फिर दूसरे इक्वेशन में v1 v2 के बजाय v पुट करना है. ओके सो p1 is v सर, square ये तो अच्छा, ये तो इक्वेशन तब सेटिस्फाई by होगी ना. r1 and p2 is v square by r2. ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वोल्ट के लिए स्पेसिफाइड है. सो वी आर गेटिंग r1 is p1 sorry v square by p1, r2 is v square by p2, and we know that r is equals to r1 plus r2, and thus we are getting is v square by p is equals to v square by p1 plus v square by p2, Yes, and 1 upon p is 1 by p1 plus 1 by p2. सर बट ये तभी सेटिस्फाई होगा जब पावर का जो अप्लायंस है उसका वोल्टेज वोल्टेज सबका सेम मेंशन ही होता है. ठीक है, ओके सर. तो हमने कहा किया था दिस इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है, ये आप Yes. लिख लें. ठीक है, when par p1 and p2 resistors with voltage v are connected in series और पैरेलल. ये प्रार्थना आप जो कह रहे थे तो उस वे में हम फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट की certain number of resistors are connected in parallel, so total effective voltage will become n into 10, and then we'll equate it equals to whatever power you are getting. तो उसमें डायरेक्टली हो जाएगा सॉल्व. ओके सर, तो सर अगर सेम क्वेश्चन सीरीज में होता तब फिर हमें उसका रेसिप्रोकल लेके करना पड़ता. फिर रेसिप्रोकल लेकर करते तो वो ज्यादा लेंथी हो जाता है ना. दूसरे जो मेथड है वो फिर शॉर्टकट हो जाते हैं हमारे. ओके सर, थैंक यू. यस सर. ठीक है, तो फिर यहाँ हम पर ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन. ठीक है, प्रार्थना ही सेइंग कि सर यहाँ पर 10 वोल्ट के हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, n है, तो टोटल इफेक्टिव वोल्टेज विल बी n into
10, ठीक है। एंड इफेक्टिव जो आपका इफेक्टिव पावर है ना, दिस इज इफेक्टिव पावर, एंड अदरवाइज जो आपकी पावर है फॉर द फुल सर्किट, तो यहाँ पर आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई है और ये सप्लाई जो है 5 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रही है, सो दिस इज इक्वल टू V इंटू आई। सो n इंटू 10 इज इक्वल टू 220 इंटू 5, सॉल्व करेंगे, n इज 110। ठीक है सर। गुड। सर हाँ जी बेटा। सर अपने ऊपर इफेक्टिव पावर का कुछ सीरीज में लिखा था, वो वाला ठीक है कि नीचे नहीं वाला? नहीं, वो ठीक नहीं है बेटा, उसको आई चेकआउट है ना, करंट हम कंपेयर नहीं करेंगे वहां पर, तो दिस इज करेक्ट ओके है ना, दिस इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में विल टेक डाउट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स हैं दैट विल टेक, एंड इन एब्सेंस ऑफ डाउट विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर बायो में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना। सर आर एनवायरनमेंट एक बार करवा दीजिए सर पहले। आर एनवायरनमेंट आ भी रहा है? हाँ सर, आर एनवायरनमेंट तो आ आ रहा रहा है? है सर। ठीक है, वो तो छोटा सा है सर, जल्दी हो रहा है। तो कौन सा करें भाई, रिप्रोडक्शन आर एनवायरनमेंट? सर रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन, आर एनवायरनमेंट तो ऐसे ही छोटा सा चैप्टर है, कभी भी हो जाएगा। ठीक है, पहले रिप्रोडक्शन का लेते हैं, फिर आर एनवायरनमेंट का लेंगे बाद में। थैंक यू। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। बाय बाय। थैंक बाय यू सर। सर। हाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय बाय।